भारत माता की। गोढ़िया कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए भारत से 2 टीम स्वीडन जा रही हैं। एक हरियाणा और जिंद की अंडर 15 गर्ल टीम है और वहीं दूसरी स्पेशल ओलंपिक भारत टीम फुटबॉल ये स्पेशल बॉयज टीम है। इन दोनों टीमों को मानव रचना, एसकेएफ और स्पेशल ओलंपिक भारत ने मिलकर तैयार किया है। गोतिया कप 2025 का आयोजन स्वीडन में हो रहा है, जहां पूरे विश्व से लगभग 70 देश भाग लेंगे और लगभग 1900 टीमें यहां फुटबॉल के लिए एकत्रित होंगी। स्पेशल ओलंपिक्स भारत और हरियाणा गर्ल्स टीम अंडर 15 ये दोनों टीम गोतिया कप 2025 में भाग लेने के लिए स्वीडन के लिए आज रवाना होंगे। 75 साल की जो स्वीडिश एम्बेसी और स्वीडन के साथ भारत का डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उसी के अंतर्गत खेलों के माध्यम से हम इस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को और मजबूती कैसे दे सकते हैं, इस दृष्टि से एसकेएफ फाउंडेशन के द्वारा इस तरह की खेल की प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जा रहा है। और भारत से जहां स्पेशल ओलंपिक्स को इसमें जोड़ा गया है, वहीं पहली बार गर्ल्स टीम अंडर 15 हरियाणा से इस इवेंट में भाग लेने के लिए चयनित की गई है। हमें आशा और उम्मीद है कि इस तरह के खेलों के आयोजनों के माध्यम से जहां हम इंक्लूजन, सामयिकता की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दो देशों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्पोर्ट्स के माध्यम से हम और मजबूत कर सकते हैं। ये इवेंट प्रतिवर्ष होता है, लेकिन भारत को इसमें प्रतिभागिता करने का ये मौका मिला है और स्पेशल ओलंपिक्स भारत की टीम और अंडर 15 गर्ल्स टीम हरियाणा दोनों अपना अपना बेस्ट प्रदर्शन देके ट्रॉफी जीतने का प्रयास करेंगे। अंडर 15 गर्ल टीम में लड़कियां हरियाणा की जिंद और हिसार की हैं। ये वो 15 साल से छोटी लड़कियां हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं, मगर इनमें स्पोर्ट्स के लिए एक अलग जज्बा था, जिसे मानव रचना ने एक खास मौका दिया और लड़कियों के सिलेक्शन के बाद उनकी ट्रेनिंग की गई और अब ये सभी लड़कियां गोटिया कप खेलने के लिए भारत से स्वीडन जाएंगी। It's wonderful to have all the members of the press here. This is a very special day. We are sending 2 teams this year to Gothia Cup, which is the biggest youth football tournament in the world. 40,000 athletes, 1,950 teams from more than 30 countries. We are very, very proud that India is so well represented with one team from Haryana, a girls team, under 15. Many of them travel abroad for the first time, and they have shown their skill to participate in this important tournament. And then we have a Special Olympics Bharat team. They actually go for the second time because they went in 2024 and they won. They came back as winners. So we are very happy to send champions to Gothia Cup. And all this, of course, has been made possible through a joint effort by so many people. Today we are very happy to have the State Minister for Haryana for Sports here with us. They say that Haryana is the sports capital of India, and when you speak to the minister, you really feel that that is the case. But of course also many other actors. We have the president of the All India Football Federation with me here today also, which shows the importance of this event. We have SKF, which is a Swedish company, but a Swedish company with an Indian heart, and they have been sponsoring this event since many years, 17 years I believe, since 2007 the first time. So this is really one of the highlights of the year. When we celebrate India, we celebrate all of India. Doesn't matter where you come from, it doesn't matter who you are. And the message is basically about inclusion. We are all able, if we don't have one talent, we have another talent. And all this works out in the end. And you will see it with these young athletes, the girls and the boys, that they are extremely able, extremely talented, and
they do something that all successful countries like India do. They play as one team. So I would like to congratulate India. I would like to thank also the government, the leadership, the Prime Minister of India for making all this possible. And finally, in my initial remarks, I would like also to say that this is a token, an example of the very close relations between Sweden and India. We have had 77 years of diplomatic relations, but diplomatic relations is one thing, but what you are seeing here today are the young ambassadors of India. ये एक बड़ा अहम दिन है हम सबके लिए जब एक गांव से एक टीम सेलेक्ट होती है और वो बच्चे जिन्होंने कभी अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकले वो आज स्वीडन जा रहे हैं और स्वीडन एम्बेसी से उनको सेंड ऑफ मिल रहा है। मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है और एक ऐसा उदाहरण है कि हम ये दिखा सकते हैं कि हमारे गांव में कितना टैलेंट है जिसको हम आगे विदेश तक ले जा सकते हैं। दूसरा स्ट्रेंथ है हमारी इंक्लूसिविटी कि जो आज हमारी स्पेशल ओलंपिक्स की टीम है ये भी गोथिया कप में जा रही है, जिनको आप डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, वो टीम तैयार होके इंडिया को रिप्रेजेंट करने। और ख़ास बात इस टीम की है कि ये डिफेंडिंग चैम्पियन है, पिछले साल की ये विनिंग टीम है जो इस बार दोबारा इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। मानव रचना इंस्टीट्यूशंस को इनको ट्रेन करने का सौभाग्य मिला। ये टीम हमारे पास हमारे कैंपस में रही, हमारे कोचेज़, हमारे स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट्स, ये लोग इन्होंने टीम को तैयार किया। बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी चाहिए था, उसकी ग्रूमिंग हमारी मीडिया टीम ने इनको सपोर्ट किया, हमारी लैंग्वेज टीम ने सपोर्ट किया। तो ये सब, और SKF जो इसका मेन स्पॉन्सर है, फाउंडर है, तो SKF, मानव रचना, स्पेशल ओलंपिक्स, हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन, हम सब ने मिल के ये एक सपना रचा है और जो एक विलेज से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक इन लड़कियों को लेके जाएगा। जबकि स्वीडन और भारत के बीच में 75 वर्षों से एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रहा और गोथेनबर्ग में जो गोथिया कप होता है उनकी आज 50वीं सालगिरह है। तो 50th ईयर्स जहाँ पर 40,000 फुटबॉलर्स खेलेंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों खेलेंगे और लगभग 2,000 फुटबॉल टीम होगी। एक ऐसा समय जबकि भारत 2036 की ओलंपिक की बीट करने की सोच रही है। एक ऐसा समय जबकि भारत में नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की पास हुआ है कैबिनेट में। एक ऐसा समय जबकि भारत के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ अलाइन होकर के बच्चों को किस तरह से स्कूल में स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा जाए। एक ऐसा समय जबकि भारत में नॉट ओनली पुलिस और फायर आर्म्स इंटरनेशनल गेम्स, वेटलिफ्टिंग के बहुत सारे इंटरनेशनल गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, यूथ ओलंपिक्स, इतने सारे जो खेल भारत में होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भारत को एक खेल के देश के रूप से विश्व के सामने रखना चाहते हैं और स्वीडन की ये प्रयास भारत के साथ मिल कर के जो हरियाणा के बच्चों को भेजा जा रहा है और वो भी बेटियां को भेजा जा रहा है, साथ में स्पेशल ओलंपिक भारत के भी बच्चों को भेजा जा रहा है, जो कि स्पोर्ट्स कहता है कि इंक्लूसिविटी, सबको लेकर के चलना है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक विज्ञापन है स्पोर्ट्स के लिए, भारत के लिए और विश्व में भारत के स्थान के लिए। मैं इन सभी बच्चों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और साथ में हम चाहते हैं कि स्वीडन और भारत के साथ मिल करके किस तरह से और खेल को आगे बढ़ाया जाए, इसकी बात की जाए। स्पेशल ओलंपिक भारत बॉयज टीम में जो एथलीट हैं वो बोल सुन नहीं सकते, मगर पिछली बार गोढ़िया कप में वो ट्रॉफी जीतकर वापस आए थे। क्योंकि गोढ़िया कप स्वीडन में होता है, इसीलिए स्वीडन एम्बेसी ने भी इन होनहार खिलाड़ियों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया। इस बीच सभी बच्चे खेलते और मुस्कुराते नजर आए। तो ये थी अभी की अपडेट, अभी की जानकारी। से तमाम जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।